میری گاں لے چل بچے علی نپ دیکھو نا جی محنت والی گل ہے چل علی پیر جی نہ کرو میرا یقین کرو میں شامی گاں چونی ہے او بچے پیر جی نہ کرو پیر جی نہ کرو میں دیکھو گاں بچے گاں میں تیری چھوڑ کے لے چولو گاں میں نہ لے بیٹا لے چلیا گاں چولو میں ہوں شامی چونی چل دو یار بچے تیرے رنگ میں بچے نہ ماریا میں بچہ کھاڑ لیا گاں نہ کھاڑ لیا گاں تھوڑے کول ہے میں جلال وچ ہاں میں جلالی آختے آج توڑی میرا کسی ہاتھ نہیں لپیا تو کون ہے پھر پیر جی گاں بھی لے جاؤ نا میرا بچہ پہاڑی پہ جا نہ پی تو میرے کو آ جائے بچہ دے میں گاں پہاڑی پہ جا تو شابا بچے شابا چل بچے پیر جی مہربانی کرو میں آنا یقین کرو آج تھوڑی تاریخ دستی ہے میرے ہاتھ کسے نہیں لیا تو پہلا بندہ جس لینے اج اللہ دی رحمت جے تیرے گھر ہوئی ہے تے کلے میں لگے رہنے ایک کلے لگے رہنے ایک کلے لگے رہنے لے جاؤ گاں بھی لے جاؤ پیر جی لے جاؤ گاں بھی لے جاؤ بچے کلے لگے رہنے نا چل چھوڑا چل خلیفے ٹھیک ہے جی اللہ دے والے اللہ دے والے اللہ سونے دے والے بچے یاد مت رکھو بلکہ دل میں لکھ رکھو سنو بیٹے سنو نا اپنے پیر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے تمہارے پیر تمہارے لیے اللہ ہے تمہاری یہ رسول ہے باقی کوئی پیر بڑے نہیں ہے سب سے بڑے پیر خواجہ حامد علی شاہ شہر شہر گلی گلی آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ بالکل بھی پیر صاحب پہنچی ہوئی سرکار کے پاس مت لے کے جائیں اپنی بہنوں اور بیویوں کو، کیونکہ اگر وہ لے کے گئے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اس وقت ہم تھانہ بولانی میں موجود ہے اور یہاں پر وہ درندہ وہ حیوان وہ صفاق ملزم موجود ہے جس نے یہ حیوانیت ٹھائی۔ اسی سے بات کرتے ہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ سائیں عابد کرنٹ پیر۔ سائیں عابد کرنٹ پیر۔ کرنٹ پیر۔ کرنٹ کون سا کرنٹ؟ جو بجلی لگاتے جو بجلی کو لگاتے ہیں، جو ابھی تک کتنی عورتوں کو ہوس کا نشانہ بنایا؟ 700 600 600-700 عورتوں کو؟ وہ دوائی دیتا تھا نا ان کو میں۔ کس چیز کی دوائی؟ یہ اولاد بن گئی۔ اچھا یہ دوائی دیتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر زیادتی بھی کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، 10-15 ہزار کا کتنی بیویوں کے ساتھ ابھی تک زیادتی کی ہے؟ 600-700۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء سو غلط فرقے کے بھٹکے ہوئے، یہ ڈگری ہولڈرز ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، یوٹیوب پہ بہت مشہور ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی غلط تشریح کر کے، غلط تفسیر کر کے عوام میں غلط عقائد بٹھاتے ہیں۔ حکم دیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچانے والا وسیلہ لو، خالی وسیلہ لیو نہیں فرمایا رب نے، الیہ اس تک پہنچانے والا، اس کی بارگاہ سے جوڑنے والا وسیلہ لو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور یہی وسیلہ ہے۔ اہل سنت کے قربان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا وسیلہ تو دیکھو، ہم نے اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہے، سارے مرشدوں کا غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید اے میرے محب، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی۔ یہ برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ جب پیر تمہارے بچے یا گائے پہ ڈاکہ مارنے کے لیے آئے تو انہیں خوش کرو۔ تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے، بیڑا فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے گئے۔
मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊँ, अर्ज करूंगा मौला भेज। जब लोगों के दिलों में ये बातें बैठ जाती हैं कि उन्हें सिफारिश की और सीढ़ी की ज़रूरत है, तो वो अपने माशरे में देखते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो सिफारिश करने वाले और सीढ़ी बनने वाले हैं, कौन कौन से पीर हैं, वो उन पीरों को तलाश करते हैं। तो जो जो पीर मुयस्सर हैं इस वक्त, वो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। पीर साईं शलवार शाह। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा मज़ार जहाँ पर शलवारें उतार कर अपने दिल की मुराद पूरी की जाती है। यहाँ पर औरतों की सबसे ज्यादा तादाद में शलवारें नजर आ रही है और लड़कियों की भी कसीर तादाद में शलवारें हमें नजर आ रही है। मेरी ख्वाब में काफी मर्तबा आ चुके हैं और साईं शलवार शाह बाबा की हिदायत है कि ये सिलसिला जारी रखो ताकि लोगों को आगे मालूम हो सके कि हम जैसे बुजुर्ग बैठे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी मुराद पूरी हो जाए तो वो अपनी शलवार उतारते हैं, फिर दरख्त में टांगते हैं, फिर जलाते हैं। तो दूसरी शलवार लाना भी मना है, लोग ऐसा कहते हैं। तो इसमें सदाकत कितनी है? सही, इसमें 100% सदाकत है। मुरादें पूरी तो होती रही हैं, मगर औरतों और लड़कियों की नहीं, बल्कि पीर साहब की अपनी दिल की मुरादें पूरी होती रही हैं, क्योंकि औरतों और लड़कियों को अपनी शलवार उतारने के बाद दूसरी शलवार पहनने की इजाज़त नहीं दी पीर साहब ने। और इसमें कोई शक नहीं है, हमें पूरा यकीन और भरोसा है, देने वाला ऊपर रब की ज़ात है, लेकिन उसके लिए भी सीढ़ी है। ये पीर फकीर दरवेश इनों की सीढ़ी है। पीर दुल्हन। वेलिए जो नई नवेली दुल्हन आप देख रहे हैं, ये असल में एक पीर है जो पाकिस्तान के हैदराबाद या फिर रावलपिंडी के किसी मार्केट में नजर आता है। गल्फ न्यूज के मुताबिक ये बंदा बाकायदा मेहंदी लगाकर दुल्हन वाला जोड़ा पहनता है और इतना ही नहीं, ज्वेलरी भी यूज करता है। इंटरनेट यूजर्स के मुताबिक ये पीर माज़अल्लाह अपने आप को अल्लाह की दुल्हन कहता है। इसका ये भी कहना है कि अल्लाह इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं करता है। ये वाले पीर जो है ये दुल्हन सरकार नहीं है, ये पीर शुफ शुफ सरकार है, मगर किसी दुल्हन से कम भी नहीं लग रहे भी। शुफ शुफ। पीर छिपकलियों वाली सरकार। अभी तक हमें अपने मोतबर ज़राए से कोई मुसद्दिका इत्लाआत नहीं पहुंची हैं कि पहुंची हुई सरकार के पहुंचे से होते हुए उनकी शलवार में कितनी छिपकलियां पहुंच चुकी हैं। बाबा साईं सरकार करम इलाही कांवा वाले कादरी कलंदर सरकार का उर्स 15, 16, 17 और 18 जुलाई 2023 को गुजरात शरीफ में मुनकिद होगा। आपको परिंदों में से कौवे बहुत ज्यादा प्यारे थे, वो हर वक्त आपके इर्द गिर्द जमा रहते थे, जिसकी वजह से आप साईं कांवा वाले के नाम से मशहूर हो गए थे। पीर साहब पीर खोते कदे अली सरकार। गधों की सवारी पसंद करते थे दरबार पे। अभी तक जो है मुरीद ये सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है, जो भी मन्नत पूरी हो जाती है वो इधर गधा दे के जाते हैं। अपनी मन की मुरादें पूरी होने के बाद लोग सैयद राजन कत्ताल जहानिया बुखारी के मज़ार पर गधा लेकर आते हैं। पीर कुत्ते अली सरकार। ये क्यों बांधे हुए? ये घुंघरू पापे बुल्ले शाह बन। मगर ये मुस्तकिल पहने रखते हैं आप हर वक्त। असा नच नच के यार मनाना है, सोने महबूब दी कदमी सीस निभाना है। नहीं ये जो भी आपने पीर देखे वो किस तरह से मार्केट में आते हैं और लोग इनके पास क्यों जाते हैं, इसलिए कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस फ़िरके के गलत फ़िरके के लोग जो हैं उलमाए सू, वो पहले कुरान की आयत का गलत तर्जमा और गलत तफसीर करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है। और अब तीसरे और आखिरी मरहले में देखिए कि जो पहले मरहले में आयत की गलत तशरीह और गलत तफसीर की थी, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये तीसरा मरहला मुलाहिजा फरमाइए। बंद कादिर कभी कादिर भी है, अब्दुल कादिर अल्लाह लोहो कलम के मालिक है, लोहो कलम के मालिक है। इशारा कर दे तो जिसको चाहे यस कर दे, जिसको चाहे नो कर दे। जिंदगी है तो मौत दे दे, मौत है तो जिंदगी दे। फरमाया कि सूरज निकलने से पहले अब्दुल कादिर से इजाजत लेता होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। और छुपने से पहले भी अब्दुल कादिर से इजाजत लेता होगा। वाह। एक साहब ने कहा कि आपने कहा कि गौस पाक की वजह से जमीन और आसमान का निजाम कायम है। मैंने कहा भाई मैं प्रूफ नहीं दिया मैंने आज तक, लेकिन मेरे साथ आओ तो मैं बंद कमरे में अभी दिखाता हूँ प्रूफ कि गौस पाक की वजह से जमीन। मत रखो बल्कि दिल में लिख रखो। सुनो बेटे, सुनो ना, अपने पीर से बढ़ के कोई नहीं है। तुम्हारे पीर तुम्हारे लिए अल्लाह है, तुम्हारे लिए रसूल है,
बाकी कोई पीर बड़े नहीं है। सबसे बड़े पीर ख्वाजा हामिद अली शाह, शहर शहर गली गली। और अब उलमाए हक जो हैं, जो बिल्कुल सही तफसीर और सही तर्जमा करते हैं, हम उनसे देखते हैं कि वो इस आयत का क्या मतलब बताते हैं। वब्तगू इलैहिल वसीला वाली आयत का, सूरह माइदा आयत नंबर 35। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अहले ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उसकी जनाब में उसका कुर्ब तलाश करो। इस लफ्ज़ ने भी काफ़ी लोगों को परेशान किया है। वसीले का लफ्ज़ उर्दू में आता है तो जरिए के मानी में आता है। वसीला जरिया, किसी तक पहुंचने का जरिया, सफारिश के लिए किसी को वसीला बना लिया, किसी को जरिया बना लिया। अरबी में वसीला के ये मानी नहीं है। अरबी में वसीले के माने कुर्ब। बदकिस्मती से बाज़ तो अल्फाज ऐसे हैं कि जो अरबी में उनका मफहूम बिल्कुल कुछ और है, उर्दू में कुछ और है। बाज़ ऐसे हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे जलील का लफ्ज़ है, अरबी में इसके मानी है सिर्फ कमजोर, उर्दू में इसके मानी है कमीने के। ज़मीन और आसमान का फर्क आ गया। जैसे कि हम पढ़ आए हैं, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। ऐ मुसलमानों, याद करो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी बद्र में जबकि तुम बहुत कमजोर थे। अब अगर वहां जलील का तर्जुमा उर्दू वाला कर दिया जाए तो फिर हमारे ईमान पे लाले पड़ जाएंगे। तो ये लफ्ज़ वसीला है, इसका जो असल मफहूम है कुर्ब। अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, नंबर 1। वब्तगू इलैहिल वसीला, नहीं, आगे बढ़ो, उसका कुर्ब तलाश करो, तकर्रुब, उससे नजदीक हो जाओ, करीब से करीब हो जाओ। लेकिन इस तकर्रुब का जरिया क्या होगा? वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। इससे बात बिल्कुल खुल गई। तकवा और तकर्रुब इल्लाह के लिए जिहाद। मगर उलमाए सू ये कहते हैं कि कामयाब वो होगा जो कादरी सिलसिले में आएगा, शेख अब्दुल कादिर का मुरीद बनेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिफारिश करके उसको जन्नत में लेके जाएंगे। आइए अब कुरान से पूछते हैं कि आखिरत में कामयाबी के लिए क्या किसी पीर की सिफारिश की ज़रूरत है या कि कोई और तरीका है। शायद इसीलिए कुरान में एक ऐसी सूरत मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला मुसलसल किस्में खाते हैं। एक कसम, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये सिलसिला रुकता ही नहीं। कसम पर कसम, दलील पर दलील, निशानी पर निशानी, और आखिर में एक फैसला। 2 किस्में, वश्शम्स व दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी चमकती हुई रोशनी की। तीसरी कसम, वल क़मरी इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे चलता है। चौथी कसम, वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, कसम दिन की जब वो हर चीज को वाज़े कर देता है। पांचवी कसम, वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और कसम रात की जब वो उसे ढांप लेती है। छठी और सातवीं कसम, वस्समाए वमा बनाहा, कसम आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया। आठवीं और नौवीं कसम, वल अर्ज़ वमा तहाहा, कसम जमीन की और उस ज़ात की जिसने उसे बिछाया। 10वीं और 11वीं कसम, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, कसम है नफ्स की और उस ज़ात की जिसने उसे मुतवाज़िन बनाया। फिर अल्लाह फरमाते हैं, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर अल्लाह ने नफ्स को उसकी बुराई और उसकी नेकी समझा दी। 11 किस्में मुकम्मल हो गईं। सूरज गवाह बना, चांद गवाह बना, दिन, रात, आसमान, जमीन और तुम्हारा नफ्स। अब वो लम्हा आ गया है जिसके लिए अल्लाह ने ये सारी किस्में खाएं। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यकीनन कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बस यही है, यही वो हकीकत है, यही वो ऐलान है, यही ही वो फैसला है जिसके लिए अल्लाह ने 11 किस्में खाएं
फिर अल्लाह फरमाते हैं वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और यकीनन नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स को दफन कर दिया। फिर गुनाह मामूल बन जाता है, फिर दिल सख्त हो जाता है, फिर हक सुनकर भी असर नहीं होता, फिर अल्लाह की 11 कस्मों का भी असर नहीं होता। 11वीं वाले पीर जन्नत में ले जाएंगे, इंसान शैतान के इस धोखे में आ जाता है। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जतो जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं।